Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So student, up to this part we have discussed chapter number 1 up to exercise 1.3. Okay, in the last part of the video I told you that one small topic is left in this chapter, and that is rational number and its decimal expansions. Okay, it is a very small topic, and this topic you already know in last class. It means ninth class you have studied this. Okay, so just the revision of that topic. After that we will solve exercise 1.4. Okay, so see, rational numbers and its decimal expansions. Listen students, all of you have might be known that what is rational number. In every definition, in every proof we have written as rational number. All of you know that what is rational number. So rational number is the number which is represented in the form p by q, where p and q are integers or co-prime and q is not equal to 0. So see students, any rational number can be expressed in the p by q form. All of have you been known na p by q form. So whenever we write any rational number, we can represent it p upon q form. Okay, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. This you have been known, this you know all of you. Okay, so in the ninth class student you have studied the properties of rational number. So rational number are of two types na, means rational number can be terminated also and rational number can be non-terminated also. Okay, the rational number which can be terminated is known as terminated decimal expansion, and the rational number which is non-terminated is known as non-terminated repeated rational number. Okay, so how to check whether a given rational number is terminating or non-terminating? So I am going to tell you. Suppose this is p by q na, p is known as numerator, q is known as denominator. Now students, when q is of the form 2 to power m into 5 to power n, where m and n are non-negative integers. ठीक है, when q is of the form 2 to power n into 5 to power n, where m and n are non-negative integer, it means that the value of m and n should be positive integer. Positive, non-negative means it can be 0 also, it can be 1 also, it can be 2 also and so on, but it cannot be negative. तो जब कभी आपको किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर किस फॉर्म का दिखे, 2 टू पावर m इंटू m टू पावर n फॉर्म का, तो वो रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नेचर का. मतलब कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाता है पूरा डिवाइड करने पर आफ्टर डेसिमल सम प्लेसेस. ओके, अब ये 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n है क्या एक्चुअल में? इट इज नथिंग बट q इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लो कभी भी आपको कोई रेशनल नंबर गिवन है p बाई क्यू फॉर्म का, ठीक है, तो q हमारा क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर. सो व्हाट विल यू डू, you will do the prime factorization of q. Okay, and when you will see that in the prime factorization of q only 2 and 5 is coming,
then that rational number will be your terminating decimal expansion. Now, for example, see, you will write this line when q is of the form 2 to power n into 5 to power n, where m and n are non-negative integers, and q is equal to, that is q is equal to this, hence that expansion is known as terminating decimal एक्सपेंशन. ठीक है. अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर हो, जो कि रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म का होता है, और अगर q 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म का हो, तो वह रेशनल नंबर क्या होता है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर. वो टर्मिनेट कर जाता है ऐसा रेशनल नंबर. ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो. ठीक है, ये याद रखना कि 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कराऊंगा कि कैसे होगा ये. ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लो. अब सुनो स्टूडेंट, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कैसे आपको पता चलेगा कि वेदर अ गिवन रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट. ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो आप, चेक 11/50 is terminating decimal expansion और नॉट. ठीक है, इसको आपको चेक करना है कि ये क्या डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो गिवन नंबर है क्या वो p बाई क्यू फॉर्म में है. तो हाँ, ये नंबर p बाई क्यू फॉर्म में है. क्या ये q इक्वल टू 0 नहीं है? हाँ, यहाँ पे q 0 नहीं है, यहाँ पे q कितना है? 50. ठीक है, अब आपको ये भी देखना है कि ये दोनों नंबर कोप्राइम होने चाहिए, क्योंकि अगर कोप्राइम नहीं होंगे तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगा. तो सबसे पहले 3 चीज देखना है. पहला कि वो p बाई क्यू फॉर्म में है. दूसरा, p और q कोप्राइम इंटीजर है कि नहीं, मतलब कि उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है कि नहीं. और तीसरा, q 0 है कि नहीं. तो सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल होती हैं. तो देखो, जब 11/50 आप लिखोगे तो ये p बाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं? ये p बाई क्यू फॉर्म में है. अब आपको करना क्या है? आपको 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि q की जगह पर 50 है, तो 50 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो जब आप 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 5 मिला. ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया 11/2 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 2. लिख सकते हैं ना इसको इस तरह, लाइक एक्सपोनेंट एंड पावर. अब देखो, क्या यहाँ पर q 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n टाइप का नहीं है, जहां पर m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है. तो आप लिखोगे यहाँ पर हेंस, नहीं ऐसे नहीं, हेंस नहीं लिखोगे, बिकॉज q इज ऑफ द फॉर्म 2 to power m into 5 to power n, hence 11/50 is terminating decimal expansion. ठीक है, बस आपको इतना करना है. ये सोल्यूशन हो गया आपके उसका. आप देख के पहचान सकते हो स्टूडेंट्स कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग. अब देखो, अब डाउट ये आता है कि अगर सर मान लीजिए कि जो q है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आता है, 5 भी आता है, 3 भी आता है, मान लो 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आते हैं, तो क्या वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं. ठीक है,
अब इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। बस मैं नंबर चेंज कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। आई एम गोइंग टू इरेज इट। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया। मान लो 7/16, इसको चेक करना है आपको, ठीक है। तो फिर से वही चीज, ये p/q फॉर्म में है, दोनों को प्राइम है और q 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है ये। अब इसको क्या करेंगे हम, 7/16 हुआ ये। आप जब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, एक चीज आपको ध्यान देना है, आपको डिनोमिनेटर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, 2 तो आया है, 5 तो आया नहीं है ना, 5 तो आया नहीं है। और हमारा एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, क्यूब किस टाइप का होना चाहिए, 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n टाइप का होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मुझे 5 भी चाहिए था, तो मैंने क्या किया, 7 देखो 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 2 टू पावर 4 इंटू 1। अच्छा, आपने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा होगा कि अगर हम लोग किसी भी नंबर का पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ मुझे 1 की जगह पर 2 तो आ गया है ना, मुझे 5 चाहिए, तो 1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 5 टू पावर 0 से। कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n, मुझे q इस टाइप का चाहिए था स्टूडेंट, q इज इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n टाइप का चाहिए था। तो मैंने उसको इस तरह बनाया। तो अब आप देखो, क्या q इस टाइप का नहीं आया है, जहां पर m कितना है 4 और n कितना है 0। 0 इंटीजर होता ही है, और मैंने आपको बताया था कि m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो, बाकी सब चलेगा। तो अगर नेगेटिव ना हो तो बाकी इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो देखो मैंने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगेन मैं कह सकता हूं 7/16 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो इससे हमें ये बात पता चली स्टूडेंट्स कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा, मतलब कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n टाइप का हो, ठीक है। जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, जो q हो, क्या होना चाहिए, 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n टाइप का। अगर उसका डिनोमिनेटर इस टाइप का है तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं स्टूडेंट, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। मान लो मेरे पास है 31/125, इसको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो फिर से सेम चीज, आप यहाँ पर p31 है और q 125 है, दोनों को प्राइम है, और यहाँ पे q 0 नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, 31/125, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 31 इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 5 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो अगेन फिर से हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो लिखा और इंटू 1 भी कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखो 31/5 टू पावर 3 हो गया ये, और इसको मैं ले सकता हूँ 2 टू पावर 0। क्यों मैंने 2 का पावर 0 ही किया, क्यों नहीं मैंने 5 का पावर 0 किया, वो भी तो कर सकते थे। वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि 5 तो पहले से था ही, 2 नहीं था, तो 2 को बनाने के लिए मैंने 1 को 2 टू पावर 0 लिख दिया। तो अब इसको सही से लिखोगे आप तो 31/2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 3। अगेन ये इस टाइप का आ गया ना, अगेन हमारा q 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n टाइप का आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हुआ, हेंस 31/125 इज
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आई थिंक 3 एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए, आप समझ सकते हो। बस आपको इतना देखना है कि जो डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का पावर वाले आता है टर्म, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उसके अलावा भी कुछ और आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मैं भी बनाता हूं, आप ये नोट डाउन कर लो। अब देखो, मैंने टर्मिनेटिंग का बताया था, सेकेंड पार्ट टर्मिनेटिंग का बता दिया, मैं नॉन टर्मिनेटिंग का बता रहा हूं। लेट P by Q is a rational number where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। ठीक है, अब देखो, when Q is equal to, नहीं, when Q is not of the form 2 to power m into 5 to power n, hence that rational number will be non-terminating decimal expansion। ठीक है, अगर देखो टर्मिनेटिंग के लिए क्या था कि हमारा Q किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 to power m into 5 to power n। जब Q इस फॉर्म का नहीं होगा तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और आपको ही पता है रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसका नेचर कैसा होता है, रिपीटिंग। तो यहां पे आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका कोई पर्टिकुलर डिजिट डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आप लिख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस फॉर्म का नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 to power m into 5 to power n टाइप का है तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर उस टाइप का नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये आप नोट डाउन कर लो। चलो अब इसके एग्जांपल में बताता हूं आपको। देखो इसके एग्जांपल, सॉरी, check whether 13 upon 120 is terminating decimal expansion or not। नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आपको ये चेक करना है स्टूडेंट कि ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो मेथड वही है, आप लिखोगे 13/120। आप देखो 120 को आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप रफ में साइड में ऐसे कर सकते हो। 120 का जब आप करोगे तो क्या होगा, 2 फिर 60 आएगा, फिर 2 30 आएगा, फिर 2 15 आएगा, फिर 3 5 आएगा और 5 आएगा। यानी कि 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 13/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये जरूर देखना कि P और Q को प्राइम है कि नहीं। यहाँ पे P और Q को प्राइम है, इनका HCF 1 ही होगा, इनको बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा अच्छे से तो 13 अपॉन क्या आएगा, 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1। अब आप देखो स्टूडेंट, अगर हमें टर्मिनेटिंग चाहिए होता तो हमारा टर्मिनेटिंग के केस में Q क्या होना चाहिए, 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर m भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने देखा कि 2 और 5 तो आया है, साथ में 3 भी आया है, लेकिन हमको 3 नहीं चाहिए था, हमको केवल 2 और 5 ही चाहिए अगर टर्मिनेटिंग चाहिए तो ये देखो 2 और 5 तो आया है लेकिन 3 भी आया है। तो अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आए तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब ये होगा ये कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है आप लिखोगे क्या, बिकॉज Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, एक मिनट, because Q is not of the form 2 to power m into 5 to power n, hence it 13/120 is non-terminating रिपीटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होगा अगर ये कोई रेशनल नंबर तो वो रिपीटिंग भी होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो कहने का ये मतलब है अगर Q इस फॉर्म का है, 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म का नहीं है, इसके अलावा कुछ भी और आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इन सबको। I hope all of you have understood. Very simple student, just you have to see only few things. Okay, after that the procedure is very simple, just you have to check Q is of which type, of 2 to power m into 5 to the power n type or not. If it is the type of 2 to power m into 5 to power n, then it is a terminating, otherwise not. Okay, I am going to erase. अब जैसे स्टूडेंट मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल है, अब मुझे मान लो ये चेक करना है 17/90। ठीक है, तो फिर से चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 245 315 355, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मैं इसको लिखूंगा 17/2 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 1। 2 और 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया, हमको 3 नहीं चाहिए था। इसका मतलब कि यह कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट
इस तरह आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपका एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह ही है। बस आपको इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देखना है कि वो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n टाइप का है या नहीं। अगर है तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था कि मान लो आपके पास कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और आपको ये बताना है देख के कि वो कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, वो टर्मिनेट होगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो टर्मिनेटिंग नेचर का है तो कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज 1.2 का, इसमें ये बताना है कि जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हैं वो आखिर में कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे या उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो जो मेथड मैंने आपको बताया उससे आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके बुक में कि पहले क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग है उनकी वैल्यू बताइए डेसिमल में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था 13/3125। इसको आपको सॉल्व करना था और आपको ये बताना था कि कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी क्या डेसिमल में। इसको आप सॉल्व कर लोगे ना डिवाइड करके, तो आपको यही बताना है कि डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा ना ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए क्या करोगे 13 इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, और नंबर है 3 से कटेगा नहीं, 5 यूनिट प्लेस पे है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 625, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से करोगे तो 5 and 5। तो अब देखो ये 5 into 5 into 5 into 5 into 5। अब बताओ मुझे स्टूडेंट क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। ये बिल्कुल टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए होता है कि 2 और 5 रहें केवल डिनोमिनेटर में। तो अगर यहाँ पे 5 है 2 नहीं है तो इसको हम 1 कर सकते हैं ना, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 2 to power 0। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 13/5 to power 5 into 2 to power 0। तो ये उस फॉर्म का है कि नहीं, ये q is equal to 2 to power m into 5 to power n टाइप का है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, होगा कि नहीं। देखो स्टूडेंट, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको डिनोमिनेटर में केवल 2 दिखे, मतलब कि वैल्यू 2 दिखे, 2 का पावर दिखे केवल, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। 5 दिखे तब भी टर्मिनेटिंग होगा। देखो यहाँ केवल 5 ही था, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 टुगेदर दिखे तब भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा और कुछ भी दिखता है नंबर, कोई भी नंबर दिखता है 2 और 5 के अलावा साथ में भी, मान लो कि 2 भी है 5 भी है और साथ में 3 भी है, तो हमको तो केवल इससे मतलब है ये एक्स्ट्रा आ गया। तो जब भी कोई नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरे क्वेश्चन में बोला ये गया है कि आप इसको डेसिमल में इसकी वैल्यू बताइए। तो इसका एक तरीका है स्टूडेंट, आप देखिए करेंगे क्या। मैं देखो मान लो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है आपके कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने डेसिमल के प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल के कितने प्लेस के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, जो भी बेस अगर ये टर्मिनेटिंग है तो जो बेस का मतलब कि जो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर है उतने प्लेस के बाद ही वो टर्मिनेट हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन ये आता कि इसको डिवाइड करिए और बताइए कि कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो जितना डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर होता है उतने ही प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, डिनोमिनेटर को 10 का पावर में कन्वर्ट कर दो, 10 के पावर में।
और 10 कैसे बनता है स्टूडेंट? आपको मैंने बताया था एक 10 कैसे बनता है, एक 10 एक 2 से बनता है और एक 5 से बनता है, ठीक है। तो 10 तभी बनेगा जब दोनों का पावर सेम हो, 2 का भी पावर सेम हो और 5 का भी पावर सेम हो। हमें अगर 10 का पावर 4 चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें 2 का पावर भी 4 चाहिए होगा और 5 का पावर भी 4 चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है अगर a टू पावर n इंटू बी टू पावर n होता है तो क्या हो जाता है, a इंटू बी होल पावर n होता है कि नहीं, एक्सपोनेंट एंड फैक्टर में। तो इसीलिए अगर हमें 10 का पावर चाहिए, 10 का पावर चाहिए तो हमें 2 और 5 का पावर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे 5 का पावर 5 है और 2 का पावर 0 है। तो हम क्या करें स्टूडेंट, हम ये करेंगे कि 5 का पावर मैक्सिमम है तो हम क्या करेंगे, जितना 5 का पावर है उतना ही 2 का पावर बनाएंगे। और वो करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जितने की कमी है उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 टू पावर 0 है, मुझे 5 चाहिए क्योंकि 5 का मैक्सिमम पावर 5 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 टू पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और नीचे भी 2 टू पावर 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 2 टू पावर 5 स्टूडेंट 32 होता है, ठीक है, सॉल्व करना आ जाएगा। 5 टू पावर 5 लिखा मैंने। अब ये देखो 2 टू पावर 0 इंटू 2 टू पावर 5 कितना हो जाएगा, जब दोनों का बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू पावर 5। अरे ऐसे पढ़ा था ना आपने, a टू पावर n इंटू a टू पावर n, तो क्या होता था a टू पावर m प्लस n एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो यहाँ पे 2 टू पावर 0 इंटू 2 टू पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा 2 टू पावर 5। अब देखो 5 और 2 दोनों का पावर क्या हो गया, सेम। और जब 5 और 2 दोनों का पावर सेम हो गया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 13 इंटू 32 अपॉन 5 इंटू 2 का पावर 5, इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। अब आप इसको लिखिए, अब देखो स्टूडेंट इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, आप क्या करो 13 और 32 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 13 और 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो 13 2 ज़ा 26 कैरी 2, 13 3 ज़ा कितना हुआ 39 और 39 और 2 41, ये इतना हो गया। और ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 5 होगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 416 अपॉन कितना हो गया, ये 1 2 1 2 3 4 5 5 0 हो गया। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो नीचे 5 0 है ना, इसका मतलब डेसिमल कितने प्लेस जाएगा, 5 प्लेस। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो वैल्यू आएगी 3 तो है ही, और डेसिमल हमेशा इस तरह लगता है। तो 1 2 3 3 ही प्लेस हुआ, इसका मतलब 2 प्लेस हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा 00416 और यहाँ पे डेसिमल होगा, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन है स्टूडेंट, ठीक है। पहले आपको ये चेक करना था उस क्वेश्चन में कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। पहले क्वेश्चन में क्या है एक्सरसाइज 1.4 के कि आपको ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो आप चेक कर लोगे। उसके बाद ये बताना है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसकी वैल्यू क्या होगी और वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो आप बताओ कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। और अगर कोई ये पूछ दे कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा तो 5 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। और आपसे बस इतना कोई पूछे कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने किया इसका वैल्यू बताने के लिए ना। आप बस ये यहाँ तक सॉल्व करना और जो भी डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर होता है उतने ही प्लेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, उसके बाद ये फिनिश करते हैं हम लोग।
अब देखो एक और है सेकेंड पार्ट 17/8। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है और दूसरे क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में ये बताना है कि ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। देखो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सेम ही है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ डाटा नहीं गिवन है, दूसरे क्वेश्चन को पहले के बेसिस पे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आप बुक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमको ये बताना है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहले चेक कर लो कि क्या है, टर्मिनेटिंग है भी कि नहीं। तो ये हो गया 17/2 इंटू 2 इंटू 2 या 17/2 ये टर्मिनेटिंग होगा बेटा, क्योंकि इंटू 1 करोगे और जब इंटू 1 करोगे तो 1 को 5 ले सकते हो। अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछे कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा तो इसका आंसर है आफ्टर 3 प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। ठीक है, लेकिन मान लो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि 17/8 की वैल्यू कितनी होगी। तो एक मेथड है, आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, लेकिन मान लो कोई बड़ा नंबर मिल गया आपको, तो कब तक डिवाइड करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेस को मतलब कि डिनोमिनेटर को 10 का पावर में कन्वर्ट करना है। और 10 का पावर में कन्वर्ट तब होता है जब 5 और 2 का सेम पावर हो। तो यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे 5⁻³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 17 इंटू क्या हो गया 125। अब देखो 2⁻³ इंटू 5⁻³ ये बन जाएगा 2 इंटू 5⁻3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 17 5 85 कैरी 8, 17 2 34 एंड 8 42, 17 1 17 एंड 4 21। ये हुआ डिवाइड बाई 10 का पावर 3। जितना 10 का पावर होता है उतने ही प्लेस के तक टर्मिनेट हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 2125/1000। ठीक है, अब जब 1000 से हो गया तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2.125। देख रहे हो ना, आंसर में डेसिमल के 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया। आप समझे कि कैसे होता है। आपको अगर ये पता करना होगा कि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाता है तो आपको जस्ट डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर देखना है, या तो 2 का पावर देखो या 5 का पावर देखो। अगर मान लो ऐसा है आपके पास 16/2 इंटू 5 ऐसा है, तो आप देख के बता सकते हो ना कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा ये, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम पावर 2 है तो ये एक्सपेंशन 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप 2 और 5 का सेम पावर बनाओगे और जो मैक्सिमम है उतने के बराबर बनाते हैं। 2 का पावर 2 है यहाँ पर और 5 का पावर 1 है यहाँ पे, तो हमको एक और 5 चाहिए, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 2⁻2 हो जाएगा और 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 80 हो गया। और ये हो जाएगा 2⁻2 इंटू 5⁻2, तो ये हो गया 80 अपॉन कितना 10 का पावर 2 और 80 अपॉन 1000 100, तो ये आ जाएगा 0.880। मतलब कि मैंने एग्जांपल बताया है, ऐसे ही आप कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। पहले आप मुझे ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। चौथा पार्ट, आपको केवल उन्हीं का डेसिमल प्लेसेस बता सकते हो जो टर्मिनेटिंग हो, क्योंकि एक बात बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो इनफाइनाइट तक जाता है ना, तो उसका तो आप बता ही नहीं सकते कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। इसीलिए हम डेसिमल प्लेसेस उसी का बताते हैं जो टर्मिनेट करता है। तो पहले चेक करो कि क्या है टर्मिनेट करेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 देन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 4 8 16 32 64 320। हाँ ठीक है, ये आया। अब इसको आप पावर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो तो 15 अपॉन 1 2 3 4 5 6 2 टू पावर 6 इंटू 5 टू पावर 2, ये 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n टाइप का है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब आपको ये बताना है कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो देखो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर 6 है, तो 6 प्लेस के बाद। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि डेसिमल में वैल्यू कितनी आएगी, तो आप फिर से वही चीज करो, ऊपर नीचे 10 का पावर बनाना है, और 10 का पावर बनाने के लिए 2 और 5 का पावर सेम होना चाहिए।
तो 2 का पावर 6 है, तो हमको 5 के पावर को भी 6 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 5 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 टू पावर 6 इंटू 5 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 इंटू 6 25, और नीचे आ जाएगा 2 टू पावर 6 इंटू 5 टू पावर 6। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो 15 5 ज़ा 75, कैरी 7, 15 2 ज़ा 30, 30 एंड 7 37, कैरी 3, 15 6 ज़ा 90 एंड 3 93, डिवाइड बाई 2 इंटू 5 होल पावर 6। अब देखो 9375 अपॉन, बेटा कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, माइट बी आई कैन रॉन्ग, ओके। तो ये हो गया 10 टू पावर 6 और ये 9375 अपॉन 10000000। 6 जीरो है तो डेसिमल 6 प्लेस शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा आंसर 0.009375। तो देख रहे हो ना, आंसर आपका आंसर भी आ गया और आपको ये भी पता चल गया कि इतने प्लेस के बाद ये जो डेसिमल था ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ये बता सकते हो कि कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। रही बात टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाउ टू चेक। सो इस तरह आप एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ एग्जांपल मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी 3-4 पार्ट बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में केवल ये बताना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या नहीं और क्यों किस टाइप का होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है। अगर टर्मिनेटिंग है तो q 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के टाइप का डिनोमिनेटर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो जब कभी भी अगर रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो हमेशा रिपीटिंग होता है, ठीक है। समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और रही बात इरेशनल नंबर की, तो आपको बताइए इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, जिन्हें p/q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और q इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो। और इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो आपको बस रेशनल नंबर के बारे में 2 पॉइंट याद रखना है कि रेशनल नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग होता है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग भी होगा। तो इस तरह स्टूडेंट आपका ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट और ये चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो फ्रॉम मंडे we will start new chapter, that is chapter number 3, linear equation in 2 variables. So till then, have a nice day. Thank you.